All right, moving further. Our next speaker is a consulting urologist, andrologist, sexologist, and a stem cell therapist since last over, more than 23 years now, since 2000. He's a regular speaker in national and international conferences across the world. He's an awardee at various platforms. He's been awarded as the Rashtriya Vikas Ratna Award at New Delhi. He's been awarded as the Phule Sahitya Ambedkar Award. He's been awarded by the Lokmat Maharashtra Most Stylish Doctor Award. So, ladies and gentlemen, with a round of applause, let's welcome a stylist, Dr. Vijay Dahipale, who will be speaking to you on stem cell. Dr. Vijay Dahipale for you. Thank you. Hello, good evening. Good evening to all of you. Now, in this session, after practical demonstration, we are going for the basics of every treatment. First and foremost of all, thank you to Dr. Kumar, our chairperson, Sachidev, and Dr. Pandey, Santoshji, Dr. Junaid, and all dignified people's audience, august gathering. Without you, nothing is possible. So now, whatsoever treatment you are observing, watching since 2 days, what is the basic principle of anything? You might have seen everything. You have seen acupressure, you have seen acupuncture, you have seen different type of this cupping therapy, whatsoever it is. Healing कैसे होता है? Healing कौन करता है? Healing डॉक्टर करता है या healing ड्रेसिंग करती है या healing कहाँ से होती है? तो healing अपनी own body करती है, अपना own tool box रहता है और वो tool box को सिर्फ आपको स्टिमुलेट करना है. फिर वो स्टिमुलेशन के लिए अलग अलग प्रकार है, डिफरेंट वेज है. जो हमारी बॉडी की स्टॉकिंग सिस्टम है, वही स्टॉकिंग सिस्टम उसे स्टिमुलेट करने के बाद हर पार्ट का हीलिंग होता है. और वो क्या प्रकार है, आप हमने काफ़ी देखा, कहाँ पे पंक्चर हो रहा है, कहाँ पे कटिंग हो रहा है, कहाँ पे हीटिंग हो रहा है, कहाँ पे हाइड्रेशन हो रहा है, कहाँ पे प्रेशर जा रहा है. तो सबका प्रिंसिपल एक ही है, हीलिंग और सेल, और वो रहती है स्टेम सेल. कुमार जी करेक्ट? संतोष जी, I feel we are going to stimulate that system, and which system works for that, ये हमें देखना है. बेसिकली यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी और सेक्सोलॉजी, ये तीनों डिपार्टमेंट में वर्क करता हूँ. स्पेशली स्टेम सेल थेरेपी का वापर जो है हर एक ट्रीटमेंट के लिए होता है, कॉस्मेटिक्स से लेके तुम्हारे पैथोलॉजिकल पार्ट एज वेल एज मेरा जो अभी बिग वर्क चल रहा है वो सेक्सोलॉजी और एंड्रोलॉजी में कैसे सेल थेरेपी हर जगह काम में आती है. उसके लिए मेरे शाम टीवी के ऊपर मेरे टॉक्स रहते हैं. हर फ्राइडे रात को 11 बजे मेरा लाइव टॉक रहता है, सुखी जीवन का मंत्र नाम से. वो रहता है मराठी में, और हिंदी और इंग्लिश में वो सब शो यहाँ पे रिलीज़ किए जाते हैं. सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके बारे में. और हर चीज़ के लिए ये सेल्स का क्या रोल होता हम डेफिनेटली देखने वाले हैं. सो हाउ इज़ आवर बॉडी इज़ डेवलप्ड, हमको तो बस इतना पता है, प्रेगनेंसी रहती है, 9 महीने के बाद डिलीवरी होती है और हम आ जाते हैं. लेकिन कितना बड़ा मिरेकल है. समझो वो ऊम के अंदर का मैकेनिज्म समझो हम तैयार कर सके तो मिरेकल हो जाएगा. इसलिए तो कितना भी रिसर्च हो गया तो उसके हम पास जा सकते हैं, 70% पास जा सकते हैं. 100% एटमॉस्फेयर नहीं बन सकता, उसे हम टुवर्ड्स 100 लेने की तैयारी कर रहे हैं. कैसे एक काम करता है और कौन बनाता है सिस्टम बॉडी में, कैसे हीलिंग होता है और कैसे रिजल्ट मिलता है, देखेंगे वन बाय वन. यहाँ पे देखो, the special cells in the body are known as stem cells. The egg cell has the complete potential to develop into our beautiful body containing billions of cells that play different roles in our body. See here the zygote, blastocyst and embryo. Where you can see these stem cells, see over here. Inner cell, in this flow you can see stem cells derived from the inner cell mass, which differentiates bones, muscles, blood cells, neurons and liver. So what are these stem cells? कहाँ से आते हैं, कहाँ पे रहते हैं
और कैसे हमें मिलते हैं? स्टेम सेल्स आर दो सेल्स इन आवर बॉडी दैट वर्क एज अ मदर सेल्स. These cells still remember how to multiply, how to grow into different type of functional cells, and these cells help us all throughout our life for routine wear and tear and also repair of the injuries. So, injury is repaired by our body mechanism, and we doctors, we are supporting to that mechanism. We speed up that mechanism by different type of methods. So, what are these methods? You can see over here. Which body parts have stem cells? कहाँ से ये stem cells कहाँ से लाने हैं? Basically अभी ये stem cell को हमें stimulate करने के बाद ही हमें मिलते हैं अपने ही body में till the end of your life. These cells are there in the body. कहाँ पे मिलते हैं? Bone marrow. A richest source है stem cell का, very convenient to obtain and also process. लेकिन ये femur में आपको दिखाने के लिए दिखाया section routinely practically ये स्टेम सेल्स हम आइलियक क्रेस्ट यानी नॉन मूविंग बोन, क्योंकि मूविंग बोन से वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन आ सकता है, इसलिए आइलियक क्रेस्ट से ही वहाँ पे हम ये सेल्स लेते हैं. सेकंड पार्ट है फैटी टिश्यू. बॉडी फिक्स डिपॉजिट ऑफ स्टेम सेल, यू कैन से वेरी इजी टू ऑब्टेन. और सबसे इम्पोर्टेंट अभी देख रहे थे ब्लड. आपको लगता हो भाई ब्लड ही बाहर आ रहा है और ब्लड से बाहर आने से क्या होगा, लेकिन यहाँ पे ये होता है. क्या करते हैं ब्लड में हम? वाइट सेल्स क्यों आ रहे हैं वहाँ पे क्यों इन्फ्लेमेशन रिएक्शन जनरेट कर रहे हैं? ट्रॉमा होने के बाद देखते हैं ना, खुद हीलिंग होना शुरू होता है, खुद ब्लीडिंग बंद होता है. देखो एक्सीडेंट में पूरा हाथ और पैर भी कट गया, वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं रहता, लेकिन बॉडी कोआगुलेशन से उसे खुद स्टॉप करती है. जब आप हाथ से दबाते भी बैठोगे, सो ब्लड को वाइप करना नहीं है. वाइप करने के बाद क्लॉट क्या होगा? तो वी हैव टू कीप इट प्रेस्ड टिल इट्स क्लॉटिंग टाइम इज देयर. तो ब्लड के क्या क्या सोर्सेस है? रिचेस्ट सोर्स ऑफ एक्टिव स्टेम सेल्स कैरी अदर मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर हीलिंग. उसमें इंटरफेरॉन्स है, इंटरल्यूकिन है, ये काफ़ी डेप्थ वाले फैक्टर है, लेकिन मैं सुपरफिशियल आपसे बात करूँगा. सॉरी, यहाँ पे अभी और कहाँ पे रहते हैं स्टेम सेल्स? तो कॉर्ड ब्लड सेल्स एंड प्लासेंटा, डेंटल पल्प. आपको पता है अभी कॉर्ड प्रिजर्वेशन किया जाता है. फ्यूचर में समझो बच्चों को कुछ ना हो जाए या कुछ हो भी गया, तो उसे वो सेल से हम रीडेवलप कर सकते हैं, वो सेल्स यूज़ कर सकते हैं. तो आपको पता है प्लासेंटा और कार्ड प्रिजर्व करने के काफ़ी सेल बैंक्स भी है, लेकिन फ्यूचर में 50-100 ईयर्स के बाद उसका क्या होगा अभी भी पता नहीं है. इसलिए यानी कोई फैशन निकली तो फैशन को फॉलो करते आगे नहीं जाता है, क्योंकि चलती फिरती बॉडी में हमेशा स्टेम सेल आपके साथ रहते हैं. इसलिए कोई नई चीज़ आ गई उसके पीछे भाग के वो स्टोरेज का आगे क्या होगा अभी भी किसको नोन नहीं है. अभी आगे कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं. देखो, अप टू चाइल्ड से लेके टिल डाइंग वी हैव अ लाइव बॉडी. अपनी बॉडी खुद की एक बहुत बड़ी लैब है. बस वो लैब को कैसे एक्टिवेट करना है भाई, योगा से करेंगे, एक्सरसाइज से करेंगे, प्राणायाम से करेंगे, कुछ भी करने से करिए वो एक्टिवेट होती है, लेकिन करने के बाद अदरवाइज नहीं. नेक्स्ट वी गो नेचुरल और इंट्रिंसिक रोल ऑफ स्टेम सेल. अभी आपको लगता होगा ये स्टेम सेल करते क्या होगे? समझो कहाँ पे भी इंजरी हो गई तो बाहर वाली तो हमें कट होने वाली दिखती है, लेकिन हम तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, ड्रिंक करते हैं तो अंदर काटते जाता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता, क्योंकि हीलिंग सिस्टम इज ऑलवेज रनिंग इन द बॉडी, ऑलवेज वेयर एंड टियर इज गोइंग ऑन, रूटीन वेयर एंड टियर, आउटर स्किन और स्टमक लाइनिंग. कभी ब्लीडिंग होती है मुंह से, कभी ब्लीडिंग होती है अपने, जो माइक्रो ब्लीडिंग हमें दिखते नहीं है, लेकिन यू आर सो लकी द गॉड हैज मेड इन सच अ वे इट हील्स ऑन इट्स ओन. Again, injury or wound healing. It's external, we can observe it. Internally, rupture of very small blood vessels, minute ulcers, कभी पता भी नहीं चलता है भाई. इवन ब्रश करते वक्त भी कभी हम इंजोर कर जाते हैं, उस वक्त जो मेटालिक टेस्ट आता है हमें लगता है भाई हाँ तो ब्लीडिंग हो रही है, बट लेटर ऑन ऑटोमेटिकली इंटरफेरॉन, ग्रोथ फैक्टर्स, प्लेटलेट्स, दे एग्रीगेट and they are helping for you. So don't disturb that cellular system which is difficult to generate. So beauty is even under injured condition, body's intelligence works perfect towards wound healing. What is autologous cellular therapy? This is most important. These cells only autologous, they are only permitted for cellular therapy because there is still study going on. What happens if suppose any other cells are taken? So what are autologous? These specialized cells from the patient's body are used to achieve repair by what mechanism? Regeneration. यहाँ पे नए सेल्स तैयार होते हैं.
बाद में रिप्लेसमेंट, भाई जो पुराना है उसको निकालना है और नया आ जाता है, इसलिए तो हमारे बॉडी में ये चेंजेस होते रहते हैं। और रिजुनेशन हीलिंग इज अचीव्ड। पांडे जी शायद निकलना है, आपको लेट हो रहा है, करेक्ट? नो प्रॉब्लम, आने के बाद पक्का हम मिलेंगे, डोंट वरी। तो रिजुनेशन की वजह से पांडे जी का नाम आ गया। तो डेफिनेटली रिजुनेशन जो है वो स्टेम सेल से ही होता है और दैट वर्क्स वेरी परफेक्टली एज द सेल्स आर फ्रॉम द पेशेंट बॉडी। क्या फायदा है उसका पेशेंट की बॉडी रहने की वजह से? सेफ एंड विदाउट नो साइड इफेक्ट्स, इज वेरी इफिशियस एंड कैन बी डन विदाउट सर्जरी। यहाँ पे सर्जरी की जरूरत नहीं है। और ये रहता है ट्राइड, यानी कैसे अपने बॉडी में हीलिंग चलता है। अभी जो देख रहे थे ना, ब्लड आ गया, हमने एक्यूप्रेशर किया, एक्यूपंक्चर किया, सबको लगता है यहाँ पे पीठ पे किया तो सब बॉडी की तरफ कैसे चला गया, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन जो रहता है अपने बॉडी में रिजोनेट होने के लिए, रीजनरेट होने के लिए और रिस्टोर होने के लिए ये मैकेनिज्म कॉन्स्टेंटली चलते रहता है। तो इसलिए हमें थैंक यू कहना चाहिए गॉड को, भाई खुद होके वो अपने को रिपेयर करने के पीछे पड़ा है। सिर्फ आप इच्छा रखो, उसको एक्टिव रखो, इसलिए ये महत्व योगा का, प्राणायाम का, सबका है। लेकिन ये सेल थेरेपी में क्या इंपॉर्टेंट है? देखो, द राइट थिंग्स आर टू बी पुट इन अ राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और इसमें मिसमैनेजमेंट है सिलेक्शन क्राइटेरिया। सिलेक्शन अच्छा किया तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। हाउ डज इट वर्क? यहाँ पे आफ्टर इनिशियल कंसल्टेशन, when patient comes to OPD, we have to have a discussion. We create a protocol, how the settings are there, how the cycle is there. Then हमें वहाँ पे ये सेल्स को स्टिमुलेट करने के लिए पांडे जी कुछ प्री मेडिकेशन देने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसे ही सिस्टम ऑन नहीं होती है। दैट मेडिकेशन यू हैव टू स्टार्ट, यू हैव टू रिमूव द सेल्स फ्रॉम योर बॉडी। तो कैसे, बहुत बड़ी रिस्की प्रोसीजर नहीं है, सादा लोकल या कुछ सिलेशन देके यहाँ पे पंक्चर करके हम सेल्स निकालते हैं आइलिक क्रेस्ट से, वहीं से ग्लूटेल रीजन से फैट निकालते हैं और पेरिफेरल रीजन से ब्लड निकालते हैं। ये रहता है मैकेनिज्म। और ये प्रोसेस जो है जब हम स्टार्ट करते हैं, उसे जनरेट होने के लिए 45 डेज टू 2 मंथ्स का पीरियड है। तब तक वो जनरेट होने में जो ड्यूरेशन है, वहाँ पे केयर लेनी है, कुछ मेडिसिन लेने हैं या कुछ कैटालिस्टिक ड्रग लेने हैं। हाउ दे वर्क, अभी यहाँ पे सेल्स कैसे वर्क करते हैं इसकी सर्टेनिटी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ एजम्पशंस या कुछ डेरिवेशंस अब तक जो आए हैं, उसका कहना है आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन दे रीच टू द इंजरी साइट ऑफ इंजरी। इट्स नेचुरल इंटेलिजेंस, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, बॉडी खुद कर लेती है। द प्रेजेंस ऑफ बायोफैक्टर, द स्टेम सेल्स ग्रो टू बिकम द सेल्स दैट कैन रिप्लेस और रिपेयर द इंजर्ड सेल्स एंड व्हेन सप्लीमेंटेड बाय allied ट्रीटमेंट्स लाइक अगेन सी हेयर। खुद होके काम नहीं करेंगे, फिजियोथेरेपी है, डाइट है, योगा है, एक्टिवेशन जिसका फास्टर और हम ग्रोथ भी बढ़ा सकते हैं। अभी यहाँ पे काफ़ी ये टॉपिक बहुत वास्ट है, यानी हम चेहरे से लेके पूरे बॉडी तक का हम डिसाइड करेंगे तो हर एक का रिपेयर स्टेम सेल से होता है। ल्यूकेमिया, प्लास्टिक एनीमिया, बीटा थैलेसीमिया, सिकल सेल, फैंकोनिज एनीमिया, इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, ऐसे 80 प्रकार के जो डिफरेंट हिमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, ये भी स्टेम सेल से रिकवर होते हैं। अभी यहाँ पे देर आर मेनी डिसीजेस, डिसऑर्डर्स दैट डू नॉट हैव एनी सॉल्यूशंस टुडे। कन्वेंशनल मेडिसिन काम नहीं करते हैं, उसको लिमिटेशन है, तो सेल ही सेल को अच्छा करेगी। तो ऐसे केसेस में हम एक ही कहते हैं, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म, डिलेड डेवलपमेंट, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये भी उसमें कर लेते हैं। पांडे जी, मुझे लगता है आपको जल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैरी ऑन कर सकते हो, क्योंकि क्या है आपका फ्लाइट का टाइम है। तो अभी यहाँ पे हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, सेल्स कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं। चलो हम कॉस्मेटिक से चालू करते हैं। अभी हमने देखा फेस के ऊपर हमने वो मैकेनिज्म किया। अभी आप सोचने होंगे बस ऐसे करने से क्या हुआ होगा, तो अगेन ये सब आता है स्टेम सेल्स के ऊपर। वो सक्शन इफेक्ट जो है, वो इफेक्ट से लोकल रीजन पे स्टिमुलेशन मिलता है। फेस में इवन हेयर ग्रोथ, हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी इंजेक्ट करते हैं जब वहाँ पे हेयर में, या जब हम पंक्चर भी करते हैं तो रहता है सोर्स, यानी वहाँ पे जख्म नहीं बनाना है लेकिन उसको डायरेक्शन देनी है, तो वहाँ पे सेल्स आ जाते हैं और इसलिए ग्लो आ जाता है। वो सक्शन इफेक्ट है, उसे स्टिमुलेट करता है। उसके बाद और क्या आता है, बहुत बार यहाँ पे बॉडी में रिंकल्स है, एंटी एजिंग है, उसके लिए भी स्टेम सेल यूज़ करते हैं। पोस्ट बर्न कॉन्ट्रैक्चर है, बहुत बार कोई स्कार मार्क है, वहाँ पे भी वर्क करते हैं। कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी में फेस लिफ्ट है, बॉडी लिफ्ट है और ब्रेस्ट लिफ्ट भी यहाँ पे किया जाता है उसके रिजुनेशन में। और आपको अभी जो एंड्रोलॉजी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, यहाँ पे
हर एक के बॉडी में आफ्टर एज ऑफ 40 बॉडी में चेंजेस होते रहते हैं। समझो डायबिटीज़ है, बीपी है, एजिंग है, उससे एक ही ध्यान में रखो, जो सेक्सुअल डिस्फंक्शन रहता है मेल है फीमेल में, उसमें बॉडी में चेंजेस हो जाते हैं। जो टिश्यू है, कार्पोरा है, जो फंक्शनल यूनिट है, वहाँ पे आपको जब तक उसे स्टिमुलेट नहीं किया जाएगा तो उसे कैसे स्टिमुलेट करेंगे? ठीक है, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, बाकी चीज़ें तो सब करते रहेंगे, लेकिन अभी मेरे प्रैक्टिस में कुछ लोगों को मैं ऐसे देखता हूँ कि ठीक है चलो डायबिटीज़ हो गया, बीपी हो गया, नहीं अभी काम खत्म, मैं कुछ कर नहीं पाता, अभी ऐसा नहीं है। लेकिन एक ध्यान में रखो कि नेचर ने पहले जो वेसल अफेक्ट होती है वो अफेक्ट होती है पेनाइल आर्टरी, जिसका 25% भी ब्लॉक हो गया तो वहाँ पे उसको डिस्फंक्शन आना चालू होता है। और हार्ट को ब्लॉक होके अटैक आने के लिए, पेन होने के लिए 50% ब्लॉक लगता है। तो इमेजिन करो आपका डिस्फंक्शन, ये पहला इंडिकेशन है आपके बॉडी में कि भाई आपको कुछ वास्कुलर चेंजेस हो रहे हैं। ये डिसीज़ नहीं है, ये डिसऑर्डर है आपके लाइफस्टाइल का, तो इसे रिपेयर करना ही करना है। बहुत बार लोगों को लगता है हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मतलब उसका काम इरेक्शन ही है क्या? नहीं है, उसका ब्लड फ्लो बढ़ाना है, ब्लड सप्लाई बढ़ाना है, तो उसके लिए ये प्लेटलेट्स काम करते हैं। तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, यानी जो लोगों को मेडिसिन नहीं काम कर रहे हैं क्योंकि वेसल ब्लॉक है, नैरो उसका डायमीटर है, तो ये प्लेटलेट्स हम उसे इंजेक्ट करते हैं आफ्टर एक्टिवेशन। और वो इंजेक्ट करने के बाद हम कुछ वैक्यूम डिवाइसेस, जैसे वैक्यूम डिवाइसेस आपने बैक के ऊपर देखे हैं, वैसे ही डिवाइसेस वो रहते हैं हमारे पेनिस को अप्लाई करने के लिए। और वो कॉम्बिनेशन से उसकी क्वालिटी, उसका सेंसेशन, उसका ड्यूरेशन, ये सब काम में आता है। और इसी तरह से फीमेल्स में भी जो वियर एंड टियर है, समझो मेंसेस है, बाद में फिर डिलीवरी हो जाती है, वो भी नेचुरल है सब चीज़ें। तो ऐसे केसेस में उनका जी पॉइंट जो है मिसप्लेस हो जाता है। तो क्या करना है, सिर्फ क्रीम या ऑयल लगा के उसको अच्छा नहीं होता है, तो उसमें भी वो शॉर्ट थेरेपी रहती है जिसके अंदर यही एक्टिवेटेड सेल्स हम यूरेथ्रा और वेजाना के अंदर जब इंजेक्ट करेंगे तो वहाँ पे नया लेयर बन के इवन सेंसेशन ही नहीं, तो एजिंग से जो आपको यूरिन लीकेज होता है, स्नीजिंग है, कफिंग है, ये आपका पेल्विक फ्लोर जो है जब काम नहीं करता है, तो ऐसे वो शॉर्ट थेरेपी से डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और उसके बाद हम कॉम्बिनेशन थेरेपी देते हैं। तो इस तरह इतने टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट है जो सेलुलर थेरेपी से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही ध्यान में रखना है, नेचुरल मेथड से आपको रिजल्ट मिलने के लिए ये सेल्स को स्टिमुलेट करना पड़ता है। यहाँ पे एक शॉर्ट में आपको पीडियाट्रिक में जो कंडीशंस रहती है, सेरेब्रल पाल्सी, हम देखते हैं बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी है, वहाँ पे अच्छी तरह से मूवमेंट नहीं होती है, उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं रहती है, उसको मेमोरी लॉस रहता है। ऐसे केसेस में इन शॉर्ट यहाँ पे दिखाऊंगा ये सेरेब्रल पाल्सी कौन से टाइप की रहती है, मोनोप्लेजिया, एमीप्लेजिया, डायप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया। तो ऐसे केसेस में अभी दवा काम करने का तो रोल निकल जाता है, लेकिन जब हम ये सेलुलर थेरेपी शुरू करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे हम ट्रीटमेंट देके उसे धीरे धीरे कैसा, इस जब पिक्चर दिखाऊंगा आपको मैं कि उसमें आपको कैसे सेल्स डेवलप होते हैं, किस तरह से न्यूरॉन डेवलप हो जाते हैं और किस तरह से ये काम करना शुरू होते हैं। इवन न्यू आर्टेरियोजेनेसिस, न्यू वास्कुलोजेनेसिस और न्यू फाइब्रोजेनेसिस, यानी नयो फाइब्रोब्लास्ट यहाँ पे तैयार हो जाते हैं और इस तरह से क्योर होना चालू होता है। और ऐसे केसेस में कौन से रूट से हमें देना है, इसे ब्लड से ही देना है या अदर कोई रूट्स रहते हैं इसके अंदर, इंट्राविनस यानी वेन के अंदर से सेल दे सकते हैं। दूसरा कौन सा आया, इंट्राथिकल, जैसा हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं वहाँ से भी ये सेल्स हम दे सकते हैं। और तीसरा आता है इंट्रानेजल, यानी नेजल रूट से भी यहाँ पे हम ये सेल्स डेफिनेटली दे सकते हैं। तो अभी ये सेल थेरेपी का डेफिनेटली आपने देखा है हाउ इट वर्क्स, हाउ ये नेचुरल यूनिट है। तो यहाँ पे सिंपल एट द एंड आपको कहना चाहूँगा, किसी भी तरह से हमें नेचुरली रिपेयर चाहिए तो सेल थेरेपी इज़ अ लास्ट ऑप्शन। और डेफिनेटली और इसके काफ़ी डिटेलिंग इनफर्टिलिटी में है। बहुत बार विजय सर वेलकम, नमस्ते। सो इवन इनफर्टिलिटी जिसमें IVF वगैरह हम करते हैं, तो ऐसे केसेस में जो पैरेन्काइमा हम कहते हैं, अभी यूट्रस का पैरेन्काइमा बहुत थिन है, वहाँ पे इम्प्लांट भी नहीं हो रहा है, जाइगोट भी डेवलप नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, तो वहाँ पे यूट्रस में भी हम जब सेल थेरेपी देते हैं उस वक्त उसकी थिकनेस जब तक बढ़ेगी नहीं तब तक वहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं होता है। फ्रेंड्स, स्टेम सेल थेरेपी इज़ अ वेरी बिग टॉपिक। ऑल टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन अ वन सेशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे again I'll thank to Dr. Kumar and all organizing committee for
for inviting me over here. Thank you. Thank you very much for patience listening. Chalo. Yeah. 98223 98223 26248 98223 26248. Chalo, thank you, Kumar sir, for organizing such a nice feast. Yeah. Congratulations, Yeah. sir. Thank you. Yeah. Yeah. We all on behalf of, Chalo, thank you, sir. so 1 minute. We all on behalf of everybody over here, thank Dr. Vijay for being over here and enlightening us on the very, very, very important subject of stem cells. And I look forward to everybody to gaining more out of him, the way the short conversations I had with him. I think he's the best person to speak to in future. Thank you very much, Thank you. sir. Yeah.